Good morning, students. Today we'll discuss about the other welding processes, resistance welding. Now, while discussing the classification, we have basically two types of welding processes: fusion welding and pressure welding. So this resistance welding comes under the category of pressure welding. So, as far as the definition is concerned, it is a welding process in which metal pieces are welded, metal pieces to be welded are first heated to the fusion state or fusion temperature by the resistance to the flow of electric current, and then external mechanical pressure is applied to complete the weld. The important thing here is that no filler metal or flux is added to make the welding joint. As in the previous case, that is arc welding or gas welding processes. So I am again repeating, no filler material or flux is used in these resistance welding process. Now, in the definition we have discussed that the workpieces to be welded are first bring to the fusion state or temperature by the use of electric current, and heat is produced by the resistance to the flow of this current, and this heat is utilized to bring the work pieces or parent metal to the fusion state. So, how the heat is produced? Now we will discuss in this. Now, principle of resistance welding. So on the screen you can see that the basic principle of resistance welding is that when an electric current is passed sorry through the junction of the metal pieces to be welded, a high temperature is obtained by the resistance of these metal pieces to the flow of this electric current, and high heat is produced at the junctions. Now, the formula used here is this one: H is equal to I square RT. This is the formula that how we can calculate the total heat generated. So say capital H is the total heat generated in joules, okay. I is the electric current in amperes, R is the resistance of the joint in ohms, and capital T is the time for which the electric current is passed through the joints and is measured in seconds. So this is the formula you have to remember: H is equal to I square RT. So we can see from the formula that is capital H, that is the heat produced, is directly proportional to the square of the current, that is H is directly proportional to I square. So a very high density current, say of the order of 15,000 ampere at a very low voltage, say 1 volt, is passed for a relatively short time, say 0.25 seconds, मीन्स एक सेकंड के भी फोर्थ हिस्से, चौथे हिस्से में इतना जब हाई इंटेंसिटी करंट हम पास करते हैं बहुत थोड़े ड्यूरेशन के लिए, तो बहुत हाई हीट प्रोड्यूस होती है एट द जंक्शन, विच ब्रिंग्स द मेटल्स जिसको हमें ज्वाइन करना है जंक्शन एरिया पे, वो उसको प्लास्टिक स्टेज में ले आते हैं,
एंड जैसे ही प्लास्टिक स्टेज में आते हैं हम करंट सप्लाई को ऑफ करते हैं और एक्सटर्नली मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि जॉइंट बन जाए, और तब तक प्रेशर को रिलीज़ नहीं करते जब तक ये हमारा जॉइंट कंप्लीट ना हो जाए। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जॉइंट्स बनाते हैं। अब हमारा हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लो जो हम को जो रेजिस्टेंस मिल रहा है उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं? तो पहला रेजिस्टेंस तो हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, दैट इज से R1। सेकेंड टाइप का रेजिस्टेंस है द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस, से R2। द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बिटवीन द टू वर्क पीसीज, से R3। एंड फोर्थ टाइप का जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस ऑफ द वर्क पीस प्लेट्स। तो इन चारों तरह के रेजिस्टेंस में R3 जो है द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बिटवीन द टू वर्क पीसीज, R3 हमें साउंड और स्ट्रॉन्ग जॉइंट बनाने के लिए जो R3 रेजिस्टेंस है उन सब उसकी वैल्यूज बाकी सारे रेजिस्टेंस से ज़्यादा रखनी पड़ती है। दैट इज़ R3 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन R1, R2 एंड R4। सो द R3 की वैल्यू हमने कहा सबसे ज़्यादा रखते हैं। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग एज कंपेयर टू अदर प्रोसेसेस? सो हमने कहा हाई प्रोडक्शन रेट। हाई प्रोडक्शन रेट की वजह से हम इसको मास प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें कोई फिलर मटेरियल और फ्लक्स इसमें कोई यूज़ नहीं करना। ओके। थर्ड इज़ heating of the workpiece is confined to a very small area which results in less distortion। कि वर्क पीसीज जिनको हम वेल्ड कर रहे हैं उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं आती ज़्यादा वेल्डिंग करने के बाद, क्योंकि हीट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लोकलाइज्ड रहती है। देयर इज नो कंज्यूमेबल यूज इन दिस प्रोसेस एक्सेप्ट द इलेक्ट्रिक पावर। सो इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल, सस्ता प्रोसेस है। नेक्स्ट इज़ वेरी स्मॉल स्किल इज़ रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द रेजिस्टेंस वेल्डिंग मशीन। सेमी ऑटोमेटिक इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए। फिर हम बात करते हैं डिसएडवांटेज। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि बिगर जॉब थिकनेस, की ज़्यादा मोटी या ज़्यादा थिकनेस वाली जॉब्स को हम वेल्ड इससे नहीं कर सकते। सर्टन रेजिस्टेंस वेल्डिंग ऑपरेशंस आर लिमिटेड ओनली टू लैप जॉइंट्स। आप आने वाले टॉपिक में देखोगे कि हमारे स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग जो है वो हम लैप जॉइंट्स बनाने के यूज़ ही कर सकते हैं। कोई और तरह के जॉइंट्स में वेल्डिंग करनी है वो इस प्रोसेस से नहीं कर सकती। इनिशियल कॉस्ट जो है इस इक्विपमेंट की हाई है, मीन जब हम नया परचेज करते हैं तो सेटअप करने के लिए काफ़ी कॉस्टली है। स्किल्ड ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर इट्स मेंटेनेंस। चलाने के लिए ज़्यादा स्किल नहीं चाहिए, बट इसको मेंटेनेंस करने के लिए स्किल्ड ऑपरेटर ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशंस में हम देखेंगे जॉइनिंग शीट्स, बार्स एंड ट्यूब्स, मेकिंग कंटेनर्स, मेकिंग मेटल फर्नीचर, मेकिंग फ्यूल टैंक्स ऑफ कार्स, ट्रैक्टर्स। हमारी जो गाड़ियां हैं उसमें हमारा फ्यूल टैंक जो है उसकी वेल्डिंग जो की जाती है, दैट इज बाय द यूज ऑफ दिस रेजिस्टेंस वेल्डिंग। वेल्डिंग एयरक्राफ्ट्स एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स, दिस इज आल्सो वन ऑफ द important applications, welding aircrafts and automobile parts. Now next हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो सबसे पहला है हमारे पास स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, देन
there is projection welding, flash welding, butt welding, percussion welding. So first of all we will discuss about this spot welding. जब हम बात करते हैं तो फिगर आपके सामने है स्पॉट वेल्डिंग. एज द नेम इंडिकेट्स स्पॉट्स, दो वर्क पीसीज जिनको थिन वर्क पीसीज जिनको वेल्ड करना है उसमें हमारा स्पॉट तरह की वेल्डिंग होगी, पॉइंट पॉइंट से लगेंगी, जैसे कि ये डार्क वन हमारा नज़र आ रहा है. ठीक है. तो स्पॉट वेल्डिंग में क्या होता है, जिन वर्क पीसीज को हमने थिन वर्क पीसीज को वेल्ड करना है उनको हम ओवरलैप कर कर एक दूसरे के ऊपर कुछ रख कर कुछ पोर्शन का ओवरलैप करते हैं. जैसे जॉइंट्स की बात करें, ओवरलैपिंग ये है एक वर्क पीसीज और से दूसरा वर्क पीस ये है, तो यहाँ पर वेल्डिंग होगी, ये वेल्डिंग है. ओके. ये वर्क पीस नंबर 1, ये वर्क पीस नंबर 2 और ये स्पॉट वेल्डिंग हो जाएगी इस तरह से. ठीक है. तो जैसे हम फिगर में देख रहे हैं कि हम एसी पावर सोर्स यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. से 220 वोल्ट या 440 वोल्ट जैसी भी सप्लाई हमारे पास अवेलेबल है, तो इसमें हमारे पास ट्रांसफार्मर रहता है, उसको स्टेप डाउन कर देते हैं. ओके. और हाई करंट पास करते हैं. ओके. और जो वर्क पीसीज के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से हमने फार्मूला ऑलरेडी डिस्कस किया कि H=I²RT. हाई करंट फॉर एट ए वेरी less voltage and for a very less duration is applied to produce the high intense heat at a particular point. तो हमारे पास इसकी सेटअप देखें कि ये ऊपर वाला मूवेबल इलेक्ट्रोड है, ये नीचे लोअर फिक्स्ड इलेक्ट्रोड है, और इन दो वर्क पीसीज को इनके बीच में हमने इलेक्ट्रोड के बीच में पोजीशन कर दिया जहाँ पर वेल्डिंग करनी है. तो और कूलिंग के लिए अगर कॉन्टीन्यूस वेल्ड कर रहे हैं तो कूलिंग के लिए कूलिंग वाटर की सप्लाई भी दी हुई है इलेक्ट्रोड की कूलिंग के लिए. तो जैसे हम करंट सप्लाई ऑन करते हैं हाई हीट प्रोड्यूस होती है एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट, और करंट को जैसे ही वर्क पीसीज हमारे फ्यूजन स्टेट में पहुंचते हैं तो करंट सप्लाई को ऑफ कर देते हैं एंड देन सम प्रेशर इज अप्लाइड एंड द मूवेबल इलेक्ट्रोड प्रेस करता है और स्पॉट वेल्डिंग हमारी पर्टिकुलर पॉइंट पे हो जाती है. इस तरह से है ये फिगर आप देख सकते हैं. अब हम इसकी थोड़ी प्रिंसिपल का भी डिस्कस करते हैं कि कैसे है नेक्स्ट स्लाइड में. तो ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्पॉट वेल्डिंग कि ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग P से लिखा है, सेकेंडरी वाइंडिंग को C से लिखा है इस साइड पे, और यहाँ पर इनपुट सप्लाई दे रहे हैं. ओके. स्टेप डाउन कर दिया और S1 और S2, ये S1 और ये S2 हमारे दो वर्क पीसीज हैं जिनको ओवरलैप करके रखा है. किसके बीच में? दो इलेक्ट्रोड्स. तो इलेक्ट्रोड E1 जो है हमारा मूवेबल इलेक्ट्रोड है, इस तरह से ऊपर नीचे मूव कर सकता है, और E2 जो है हमारा इलेक्ट्रोड ये वाला फिक्स है और ये आर्म B पर फिक्स किया हुआ है, फिक्स्ड आर्म B, और आर्म A इज़ मूवेबल. ओके. तो इस तरह से हमारी कंस्ट्रक्शन है. तो ये फुट पैडल होता है इसको ऑपरेट करने के लिए. फुट पैडल को प्रेस करते हैं तो करंट सप्लाई ऑन रहती है और हमारा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हीट प्रोड्यूस हो जाती है, और जैसे हीट प्रोड्यूस होती है करंट सप्लाई को स्विच ऑफ कर देते हैं और प्रेशर अप्लाई करते हैं. तो तब तक प्रेशर अप्लाई करके रखते हैं जब तक कि साउंड वेल्डिंग स्पॉट वेल्ड ना बन जाए. तो इस तरह से स्पॉट वेल्डिंग की जाती है. अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की, वेयर वी आर यूजिंग दिस स्पॉट वेल्डिंग. सो ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है. जितने भी ये गाड़ियों के हमारा फ्रेम्स हैं, डोर्स हैं, सब वेल्डिंग करने के लिए स्पॉट वेल्डिंग यूज़ किया जाता है. एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी उसकी बॉडी की वेल्डिंग के लिए भी स्पॉट वेल्डिंग यूज़ करते हैं. हाउस होल्ड स्टील फर्नीचर्स
जितना भी आजकल स्टील का फर्नीचर आ रहा है उसमें हम स्पॉट वेल्डिंग करते हैं। कंटेनर्स की वेल्डिंग के लिए भी हम स्पॉट वेल्डिंग यूज़ करते हैं। वेल्डिंग ऑफ लो कार्बन स्टील्स, हाई स्पीड स्टील्स, स्टेनलेस स्टील्स, एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल अलॉयज़, ये कुछ वेल्डिंग मटेरियल बताएं कि इस स्पॉट वेल्डिंग से हम इन डिफरेंट मटेरियल्स को वेल्ड कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, स्पॉट वेल्डिंग। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सीम वेल्डिंग। ये भी इसी की फर्दर एक्सटेंशन है, स्पॉट वेल्डिंग की सीम वेल्डिंग। द डिफरेंस इज दैट in case of a seam welding, we are replacing the tipped type electrodes with a continuously rotating wheel type electrodes। ये wheel type के electrodes हैं, इससे हमारे continuous joint बनता है। इतना सा फर्क है बस इसमें स्पॉट वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग में। बाकी सारा कंस्ट्रक्शन जो मशीन है आपकी, सारे पार्ट सेम है। ओनली डिफरेंस विद द शेप ऑफ द इलेक्ट्रोड्स कि इसमें हमारे व्हील टाइप इलेक्ट्रोड्स हैं। तो नीचे वाला व्हील हमारा फिक्स्ड इलेक्ट्रोड होता है, ऊपर वाला व्हील हमारा मूवेबल, इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में मूवेबल इलेक्ट्रोड रहता है। ये अपना मशीन का फिगर भी देख सकते हैं कि ये फुट स्विच लगाया है इसको प्रेशर अप्लाई करने के लिए। इसके इस कैबिनेट के अंदर हमारा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर और कंट्रोल्स फिक्स्ड हैं। ये लोअर इलेक्ट्रोड, ये अपर इलेक्ट्रोड मूवेबल है, और ये हमारा वर्क पीस रखा हुआ है। बाकी सारा कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स सेम है। ओके, तो इसमें भी हम थिन शीट्स की वेल्डिंग के लिए, थिन शीट्स जिनकी थिकनेस से लेस देन 3 mm है, उनकी कॉन्टीन्यूस वेल्डिंग के लिए हम यूज़ करते हैं सीम वेल्डिंग। अगर बट इफ़ वी वांट टू weld the work pieces having thickness 10 mm or more, then the rollers do not move with continuous motion. They are moved with intermittent motion to give sufficient time required to make each individual weld properly. कुछ रुक रुक कर चलते हैं कि जहाँ पर वेल्डिंग करनी है वहाँ पर रुक जाएं, प्रॉपर हीटिंग हो जाए, फ्यूजन स्टेट में आ जाए, उसके बाद फिर मूव करते हैं। बट दिस इज़ ओनली डन इन केस ऑफ ए थिक वर्क पीसीस। थिन के केस में हम कॉन्टीन्यूस यूज़ करते हैं। तो इसमें भी कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, तो कूलेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे ऑफ वाटर यूज़ करते हैं, या फिर कोई रेफ्रिजरेंट फ्लूइड यूज़ करते हैं कूलिंग के लिए। तो एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर, दिस इज ऑफ टू टाइप, रोल स्पॉट वेल्ड एंड स्टिच वेल्ड। रोल स्पॉट वेल्ड में यू कैन सी फ्रॉम द फिगर दैट सम स्पॉट्स आर देयर एट सम डिस्टेंस, ये। बट इन केस ऑफ स्टिच वेल्डिंग इट इज कॉन्टिन्यूस। ओके, सो एप्लीकेशंस की बात करें, कौन कौन से मटेरियल्स वेल्ड कर सकते हैं, तो हमारे पास वही हैं, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम एंड इट्स अलॉयज, निकल एंड इट्स अलॉयज, मैग्नीशियम अलॉयज, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, दैट इज प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन ये भी एक फर्दर एक्सटेंशन है। इस तरह की वेल्डिंग में the current is concentrated at the particular spots to be welded, and these small spots or projections are imposed on one of the sheets। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि ऊपर वाले वर्क पीस में कुछ इस तरह से स्पोर्ट्स बनाए हुए हैं और नीचे वाली शीट प्लेन है, इस तरह से। तो ये एम्बॉसिंग करके एक पर्टिकुलर शेप्स बना देते हैं कि ऊपर वाला वर्क पीस के पर्टिकुलर पॉइंट्स पर ही कांटेक्ट हो नीचे वाली प्लेट से। एंड these projections are generally very small, say of the order of 0.8 mm, and when this high current is passed, current is concentrated at these particular points,
particular points. You can see now clearly from the figure. The rest of the constructional detail is same, that is we are using AC power supply and supplying to the primary winding of the welding machine, and through secondary winding one of the terminal is connected to the upper terminal and the other terminal of the secondary winding is connected to the lower terminal, and this one, in this way we are applying the force. तो बाकी सारा प्रोसेस सेम है कि हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई किया, वेरी हाई इलेक्ट्रिक करंट फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड एट ए वेरी स्मॉल वोल्टेज। इसकी वजह से हमारे पास वर्क पीस के रेजिस्टेंस की वजह से हाई हीट जनरेट होगी। इस हाई हीट जनरेटेड की वजह से हमारे लोकलाइज्ड पॉइंट्स जो हैं मेल्ट होंगे, और जैसे ही मेल्ट हो जाएंगे फ्यूज़न स्टेट पे आ जाएंगे, वी विल स्विच ऑफ द करंट सप्लाई एंड देन अप्लाई द एक्सटर्नल प्रेशर टू मेक द साउंड वेल्ड जॉइंट। नाउ एप्लीकेशंस की बात करें तो हमारा स्मॉल नट्स एंड बोल्ट्स हैं, फास्टनर्स हैं, किसी लार्ज बॉडी के साथ वेल्डिंग करनी है तो वहाँ पर ये पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग। और सेकंड एप्लीकेशन वेल्डिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर कंडेंसर, ज्वाइनिंग ऑफ वायर्स, या वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील पार्ट्स, टाइटेनियम एलॉयज। तो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ प्रोजेक्शन वेल्डिंग किए हुए हैं। The one difference you can see from the figure from the previous processes of spot, seam and projection welding is that in this, particularly in this percussion welding, we are joining work pieces end to end. यहाँ पर वेल्डिंग कर रहे हैं, ये वेल्डिंग कर रहे हैं, ओके, एंड टू एंड। बट इन द प्रीवियस केसेस वी आर मेकिंग लैप जॉइंट्स, इसमें हम बट जॉइंट वर्क पीसीज के एंड से एंड को वेल्डिंग कर रहे हैं। दिस इज द मेजर डिफरेंस। एंड हाउ वी आर अप्लाइंग द हीट, सो वी आर work pieces are brought near to each other by applying a pressure, and the heat for welding is obtained by an arc produced by rapid discharge of stored electric energy। इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है इसमें, वो स्टोर करके जैसे इस स्विच को ऑन करते हैं वर्क पीसीज के एंड्स के पास में जहाँ पर वेल्डिंग करनी है, वो वहाँ पर एक आर्क स्ट्राइक होती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, एंड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट वी आर अप्लाइंग द एक्सटर्नल प्रेशर। तो इसी में ऐसे कहा है कि आर्क बिटवीन द वर्क पीसीज आर स्ट्रक बाय ब्रिंगिंग द वर्क पीसीज in a light contact so that current starts flowing. After that, gap is maintained between them to produce the arc. At this stage, more pressure is applied which extinguishes the arc। कि प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, मूविंग प्लेट्स दोनों पास में आ जाती हैं इस डायरेक्शन में, तो वर्क पीसीज कॉन्टैक्ट कर जाते हैं और आर्क हमारी ख़त्म हो जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है। और उसके बाद प्रेशर इज़ रिलीज्ड व्हेन द वेल्ड कूल्स, जब वेल्ड जॉइंट कूल हो जाता है उसके बाद प्रेशर को हम रिलीज़ कर देते हैं। एंड आफ्टर दैट लास्टली द वर्क पीसीज आर अनक्लैम्प्ड, कि वर्क पीसीज को अनक्लैम्पिंग करके जॉइंट को बाहर निकाल देते हैं। तो आपने देखा है इसमें मेजर डिफरेंस ये था कि इसमें वर्क पीसीज को एंड टू एंड बट जॉइंट की फॉर्म में वेल्ड किया जाता है। तो एप्लीकेशंस क्या है इसकी, कि टेलीफोन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, या फिर जैसे वेल्डिंग फाइन वायर लीड्स टू फिलामेंट इन लैम्प्स। अनदर एप्लीकेशन इज इट इज़ यूज फॉर वेल्डिंग स्टे लाइट टिप्स टू टूल्स, सिल्वर कॉन्टैक्ट टिप्स टू कॉपर, कॉपर टू एल्युमिनियम। कि जैसे पर्टिकुलर टिप्स किसी दूसरे मटेरियल के ऊपर किसी पर्टिकुलर से कॉस्टली मटेरियल की टिप को वेल्ड करना है तो इस तरह से वेल्ड करते हैं, तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दीज ऑल द 4 प्रोसेसेस ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग
spot weld, we have discussed in resistance welding, that is spot welding, seam welding, projection welding and percussion welding. Thank you. Meet you in the next lecture.